हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियसली हमने जो लेक्चर्स में देखा था दैट इज while loop we have discussed it and programs of while loop we have discussed it. Now you know it, there are two types of loop, while loop and for loop. While loop we have discussed it. Now we come to the for loop. For loop is very easy to use it in any programming language, while in case of Python it is also easy. But one main thing is that you can also use it loop in list, tuple and string in Python, for loop in Python. That is the most important thing. So the advantage of for loop is you can keep all the things in a single statement, like this thing, for variable in sequence. While in case of while loop, first we have to initialize, then while condition, then statement, then increment, decrement. But in case of for loop, there is no need to initialize it. It automatically initialize it. Um for variable in sequence, automatically initialize it. Range function perform it. So for variable in sequence statement, to repeat example, sequence can be a list of value or it can be defined by range function. Sequence always defined by range function. For example, if you are using range 3 or range n, it will produce a list of value 0 to 1, 0 to n minus 1. For example, n is 5, the loop will run it 0 to 4. In next, so there are three range function is used, it first, second and third. First have one parameter, that is last value, that is n minus 1. Second is start and stop. Start means initial value, you can start it normally. If you are not initializing, initial value is 0, but if you are initializing it, it will start whatever you have initialized. And n is last. And third one is start, stop and step. Here you can also say stop, start, stop or step. First range, third, I suppose 1, 5 and 1. So 1 will the start value, 5 is the ending value, and step 1 will be the increment by 1. Now this type of program you can create it. So see this thing कैसे work करता है. Here I have explained everything. The range function it generates a list of numbers which is generally used to iterate over the loop. Range function uses three types of parameter. तीन तरह के parameter आते हैं range में. Start, starting number of sequence. Stop, generate number up to but not including last number. Last number include नहीं होता है, चीज ध्यान रखना, because loop always start from 0 to n minus 1. This thing you remember it. Normally arrays में ये values रहती हैं. Step difference between each number in the sequence. Difference मतलब if first value step value 1 दे रखी तो first number 1 है तो second 2, 3, 4, 5 इस तरह से. Python uses range function in three ways. Range stop, पहला वाला अगर range function use करते हैं, if you are using first range function then stop, second range function range start stop और third range start stop step. All parameters must be integer. All parameters can be positive or negative. ये important बात है. All parameters can be positive or negative. This is the important thing. तो रेंज हम तीनों फंक्शन से यूज करेंगे. मैं आपको प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग भी बताऊंगा और आउटपुट भी बताऊंगा और नॉर्मली थ्योरेटिकल अप्रोच में कैसे वर्क करता है ये भी बताऊंगा. ये एक सिंपल फंक्शन है और रेंज कैन ऑल्सो बी यूज्ड जैसे 2 इंटू एन, एन 5 है 10 प्लस 13, तो 13 तक यूज होगा. 2 इंटू एन, एन 5 है 10, 10 प्लस 3 13, तो 0 टू 13 मतलब रेंज ऑलवेज n माइनस 1 मतलब n माइनस 1 मतलब 13 माइनस 1 मतलब 12. और सिंगल आपको उसी लाइन में यूज करना है तो आई कॉमा एंड और इक्वल्स इक्वल्स. तो वैल्यू विल बी प्रिंटेड फ्रॉम 0 टू n माइनस 1. इसी को आपको आउटपुट के फॉर्म में देखना है. तो एक प्रोग्राम मैंने बनाया n नंबर जनरेट करने का. num integer input enter any number for I in range num. फिर प्रिंट आई तो एक एक वैल्यू प्रिंट करेगा. अब मान लो मैंने num वैल्यू 10 दी तो इट विल डिस्प्ले 0 to 9. सपोज आई इनपुट 15 तो इट विल डिस्प्ले 0 to 40. अब मैं इसको रन कर रहा हूं
रेंज फंक्शन ये लास्ट वाला मतलब फर्स्ट रेंज फंक्शन. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेंज फंक्शन. तीनों को मैं आउटपुट लेके बताऊंगा आपको. फाइव तो 0 to 4 तक आएगा. नाउ दिस इज द अप्रोच. यहाँ इनपुट है और वहां आउटपुट. ये ओवरऑल पूरी चीज चली. आई पाइथन यूज करोगे तो वहीं ऊपर इनपुट है और नीचे आउटपुट है. ये चीज देखने वाली बात है. मेरे ख्याल से क्लियर हो जाओगे. ये फर्स्ट रेंज फंक्शन है. सेकंड और समझते हैं हम. आई एंड आप इसको भी सेम लाइन में भी आपको प्रिंट करना हो तो कर सकते हो. जैसे इसी फंक्शन को आप सेम लाइन में प्रिंट करना चाहो. इसको स्पेस सिंपल सेम लाइन. ये जो स्लेशन लिया दैट मींस वर्टिकल आउटपुट. इसमें हॉरिजॉन्टल आउटपुट आएगा. 10 जस्ट सी द आउटपुट. ये आपका आउटपुट 0 to 9. END equals to double quotes में space. So it will fulfill all the things. सभी चीजें. नेक्स्ट उस पर चलते हैं हम. अच्छा तीनों एक ही उसमें आ जाएगा. रेंज स्टॉप. ये स्टॉप वाला फंक्शन जो मैंने बताया आई एक्स इन रेंज 4 तो 0 to 3 तक वैल्यू प्रिंट होगी. ये फास्ट रेंज फंक्शन है जिसका एग्जांपल मैंने आपको बोल दिया. बाय डिफॉल्ट जो 0 से स्टार्ट होती है. इस रेंज को स्टॉप को वैल्यू भी ले लिया हमने. अब ये नेक्स्ट है. इसमें स्टार्टिंग वैल्यू भी आपको देना पड़ती है और एंड वैल्यू भी देना पड़ती है. अब इसका फायदा ये होता है कि स्टार्टिंग वहीं से शुरू होती है जहां से आपने दी और एंड में -1 चलता है. ये एक इंपॉर्टेंट रोल है. अब देखें हम उसी प्रोग्राम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके एक और ले लेते हैं हम फॉर लूप का नेचुरल नंबर का. अब हम इसको वो कर लेते हैं कमेंट. और हम ये मान रहे हैं कि इसको अब 1 कॉमा नम ले लेते हैं. इंडेंटेशन का ध्यान रखना जरूरी है. या इसको अलग ही ले लेते हैं. वन कॉमा नम.
वन से स्टार्ट होगा और एक कम चलेगा, लेस देन वन। अच्छा, आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो, ये F5, मैं F5 से कर रहा हूँ। सेव, इंटर 10, 1 to 9। अब आप वही इंपॉर्टेंट बात है, स्टार्टिंग वहीं से होगा जहां से आपने दिया। इफ यू आर नॉट गिविंग स्टार्टिंग नंबर, बाय डिफॉल्ट 0। इफ यू आर गिविंग स्टार्टिंग नंबर, इट विल स्टार्ट फ्रॉम दैट नंबर विच यू आर स्टार्टिंग। और एंडिंग जो है वो हमेशा लेस देन 1, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये स्टार्ट और स्टॉप दोनों। अब एक आ रहा स्टार्ट स्टॉप। अच्छा, बाय डिफॉल्ट जो वैल्यूज इंक्रीज होती है ओनली 1, इट विल इंक्रीज बाय 1, एक वैल्यू इंक्रीज होती है। अब एक स्टॉप वाला बचा है, ये स्टार्ट स्टॉप, और यहाँ ये स्टेप है। स्टेप मीन्स कितनी वैल्यूज इंक्रीज करना, इसको भी देख लेता था। हम 2 से इंक्रीमेंट कर देते हैं तो वो ऑड नंबर जनरेट हो जाएंगे। इट विल जनरेट ऑड नंबर, बिकॉज 1 फिर कॉमा 2 से इंक्रीमेंट 3, फिर कॉमा 2 से इंक्रीमेंट 5। F5 से रन कर रहा हूँ 14, तो 13 तक वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी 1 से। वैसे भी एक कम ही चलेगा। 15 लेंगे तो भी वही होगा, आउटपुट वही आएगा। 13 रीजन बता सकते हो, एक कम चलता है। 15 आ नहीं सकता क्योंकि वो 14, या तो 16 लेंगे तो 15 तक आएगा। इट विल एग्जीक्यूट लेस देन 1, एक कम चलता है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये तीनों रेंज फंक्शन मैंने बता दिया। ये और एक लिया है फॉर आई इन रेंज, तो ये 0 1 2 तक चलेगा एक ही स्पेस में। सेकंड वाला 5 to 10, 5 6 7 8 9। थर्ड वाला 6 8 10। थर्ड वाला 1 2 3, मतलब 1 से लेके 2 तक चलाओ। आइन आइन 1 2 3, प्रिंट आई 1 2 3। अब ये प्रिंट कर दिया उसने 1 2 3, इसको ले लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। आखिरी वाले में रेंज फंक्शन नहीं है, इसमें जो आप देख रहे हो ये रेंज फंक्शन नहीं है, ये विदाउट रेंज काम कर रहा है। मल्टी लाइन कमेंट, हालांकि इसमें इनपुट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने नम यूज नहीं करा कहीं, मतलब डायरेक्ट आउटपुट है ये। आप चाहो तो इसको मैं सेपरेट ले लेता हूँ, प्रोग्राम के फॉर्म में नहीं लेता हूँ। प्रोग्राम फॉर लूप विदाउट रेंज फंक्शन, मतलब वो जितनी वैल्यूज है वो सब डिस्प्ले कर रहा है। इट विल डिस्प्ले ऑल द वैल्यूज। ये 1 2 3
हियर रेंज फंक्शन इज नॉट यूजिंग, रेंज फंक्शन वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे। जितनी वैल्यूज दी हमने वो सारी वैल्यूज आ जाएगी, 4 5 F5, whatever values we have taken, it will display it without range function, तो विदाउट लिख देता हूँ। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ये फिर काउंट प्रोडक्ट इक्वल्स टू प्रोडक्ट इनटू काउंट 24 आया। काउंट इन एक्स रेंज, लूप दैट काउंट थ्रू ए रेंज ऑफ नंबर। 4 मतलब एक कम चलेगा, तो काउंट में जो वैल्यू है वो 0 है और वो 3 तक चलेगा। प्रोडक्ट में वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 1 आएगी, फिर 1 इंटू ये 2 आएगी तो 2, ये 2 आ जाएगी। फिर अगली बार में 3 इंटू 2 आएगी 6, और फिर अगली बार में 4 आएगी। तो दोनों केस में वो 24 ही आएगा, इसमें एक आगे ज्यादा चला दिया, और 0 1 2 3 चलेगा। आगे देखें, ये मैंने प्रोग्राम आपको प्रिंट बताया ही कैसे फॉर लूप से चलता है रेंज फंक्शन। ये और फॉर लूप, अपर बाउंड, लोअर वैल्यू 1, आउटर 10, सम ऑफ 1 to n नंबर कर रहे हैं हम। ये हमने व्हाइल लूप के थ्रू बनाया था, तो इसको आप फॉर लूप के साथ भी बना सकते हो। व्हाइल लूप फैक्ट, ये व्हाइल फैक्टोरियल का जो प्रोग्राम है उसको फॉर लूप में कन्वर्ट कर देते हैं हम। फॉर फैक्ट, अब यहां ये हट गया, आई नंबर। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज करता वैल्यू, तो ये हट गया, ये भी हट गया। अब आपको एक नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, तो ये एक नंबर का फैक्टोरियल निकल जाएगा। इट विल कैलकुलेट ओनली 1 नंबर फैक्टोरियल। सेव करा F5, 10 का फैक्टोरियल, सॉरी रेंज फंक्शन नहीं दी ना, RANG रेंज फंक्शन नहीं दिया था। फाइव, इसमें इनिशियल वैल्यू आपको 0 नहीं लेते हुए 1 लेना पड़ेगी। रीजन ये है कि वो 0 से इनिशियलाइज करता तो वो 0 ही कैलकुलेट करेगा, उसकी वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी।
इसमें पाइथन में ये सोचने वाली बात है। और 4 में भी एक कम आएगा, 5 देंगे 6 देंगे तो 5 का आएगा। अपने को अगर वो कैलकुलेट करना हो तो अपने को जैसे वही लाना हो, नंबर की वैल्यू नहीं करना हो तो नंबर +1 कर दो। ये आप 5 की दोगे तो 5 का प्रॉपर आएगा 120। ये आउटपुट आ गया फैक्टोरियल का प्रोग्राम, मैंने आपको बता दिया इसमें। प्रैक्टिस करें आप तो उसमें क्लियर हो जाएगा आपको। अब ये फॉर लूप अलग तरीके से भी चलता है, जो नॉर्मली सोचने वाली बात है। जैसे लेटर इन पाइथन, करंट लेटर, लेटर इन, मतलब स्ट्रिंग में भी चलेगा। अपन इसमें जैसे इटरेटिव वेरिएबल इन सीक्वेंस, जैसे यही अपन ने प्रिंट कर दिया। उसको देख लेते अपन। फॉर लूप लेटर, प्रोग्राम फॉर स्ट्रिंग के थ्रू। अब मान लो लेटर की वजह अपन आई ले लेते हैं, करंट लेटर इज, और आई से प्रिंट करते हैं अपन। अब F5 रन करते हैं। अब रन करेंगे तो ये आ गया पाइथन python, सारी स्ट्रिंग आ गई। मतलब इसमें ऐसा है कि पहले फर्स्ट लोकेशन P0, 0 लोकेशन पे P, फर्स्ट लोकेशन पे Y, सेकंड लोकेशन पे T, थर्ड लोकेशन पे H, फोर्थ लोकेशन पे O, फिफ्थ लोकेशन पे M। ये सारे वैल्यूज प्रिंट होगी जो भी आप लोगे। ये अगेन इट इज वन अनदर टाइप ऑफ लूप, लूप अलग टाइप का यूज करते हैं, इसमें देखा हमने। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये सिंपल चीजें हैं और भी हैं। ये लिस्ट के अकॉर्डिंग, लिस्ट आगे का कंसेप्ट है, कैसे यूज करते, तो लिस्ट में भी ये यूज होता है। अब लिस्ट आगे अपन यूज करेंगे। ये लिस्ट इस टाइप से, जैसे ये 2 लिस्ट और है। अब ये हमने लिस्ट ली ना, ये फ्रूट लिस्ट है, ये सेकंड एग्जांपल है। मतलब ये लिस्ट भी उसके अकॉर्डिंग प्रिंट हो जाएगी, देखें अपन।
ये फ्रूट लिस्ट बने। हम इसमें करते हैं प्रोग्राम फॉर यूजिंग फॉर लूप विथ लिस्ट के साथ काम करते हुए। फ्रूट्स लिस्ट बनी हमने, फ्रूट्स में 3 वैल्यूज हैं। अब ये हम आई वेरिएबल ले लेते हैं। आई में बार बार ले रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं हो गया, दोनों जगह फ्रूट्स कर रखा है। ये मैंने लिया। फॉर लूप लिस्ट मैंने नाम दिया। अभी लिस्ट कैसे बनती है इसको हम अभी आगे भी देखेंगे, तो पर आपको एक नॉलेज में आ जाए कि कैसे काम करता है। इसमें ये है कि रेंज फंक्शन यूज नहीं हो रहा है। ये देखो मल्टीपल वैल्यूज एक साथ प्रिंट हो रही है। तो ये सोचने वाली बात है, जिसमें आपके पास अलग अलग वेराइटीज के लूप्स आ रहे हैं, अलग अलग तरीके से हम देख रहे हैं फॉर लूप को। और काफी सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है। अब मैं आपको एक काम और करता हूँ, उसमें और भी काफी सारे प्रोग्राम्स हैं। पाइथन के प्रोग्राम से काफी सारे, फेब्रुअरी सीरीज का मैंने बताया था, ये फॉर लूप के थ्रू है। अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहुत ही अलग टाइप का है। ये अलग टाइप का है। यूजिंग फॉर लूप। अब ये है किस चीज का प्रोग्राम? ये परफेक्ट नंबर का प्रोग्राम है। परफेक्ट नंबर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 28 है, 28 के आप फैक्टर्स करोगे तो जो फैक्टर्स आएंगे उनका प्लस अगर इक्वल है तो वो नंबर परफेक्ट है। मैं इसको आपको रन करके बताता हूँ तो ही पहले आपको क्लियर हो पाएगा। कि हमको अलग अलग वैरायटी के प्रोग्राम भी देखना है। प्रोग्राम फॉर चेक गिवन नंबर इज परफेक्ट और नॉट। एक नंबर ले लिया, सम ले लिया, सम की वैल्यू रेंज तक लगा ली। पहले मैं इसको रन करता हूँ, रन करके बताता हूँ, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि वो नंबर परफेक्ट है कि नहीं। तो काफी सारी एरर की भी संभावना है, नहीं दिख रही है। 28 परफेक्ट। फिर रन कर रहा हूं मैंने, 10 नॉट परफेक्ट।
अब कैसे वर्क कर रहा है आपको बताता हूँ। 28 के जब आप फैक्टर्स करोगे, एक्सप्लेनेशन, तो 28 के फैक्टर्स आप करोगे तो 14 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, इसके फैक्टर्स करोगे तो उसका रूल ये है कि जो फैक्टर्स आप करोगे वो फैक्टर्स का सम और एक्चुअल नंबर वो आपका इक्वल होना चाहिए, और वो इक्वल आ रहा फैक्टर्स। अब फैक्टर करेंगे कैसे? फैक्टर हमेशा, फैक्टर के लिए एक सिंपल सा फंडा है, फैक्टर निकालने के लिए हमेशा आप मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करो, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब ये इसका लॉजिक है, जो नंबर आपने निकाले उसी का लॉजिक, और इसको मैं अब आपको 1 बाय 1 ड्राई रन करके बताऊंगा कैसे काम करता है। सम 1 आई अब इसका मान लो मैंने 28 दिया, तो यहां आए तो सम की वैल्यू 0 हुई, तो मैंने 0 असाइन कर दी। फिर आई की वैल्यू कुछ नहीं है, पर स्टार्टिंग 1 दे रखी तो 1 कर दी। अब रेंज एन लिया 28, लूप 27 तक चलेगा। लूप 27 तक चलेगा है। तो अब देखें हम, एन एन मतलब 28, मॉड आई 1 है, 28 में 1 का निकालेंगे तो 0 है क्या? हाँ है। तो सम 1 इक्वल्स टू सम 1 प्लस आई, मतलब सम 1 0 है और आई 1 है, तो 0 प्लस 1 1, तो सम 1 हो गया 1। फिर लूप आगे बढ़ा, अब आई की वैल्यू 2 हुई, 28 मॉड 2, 28 में 2 का मॉड करेंगे तो 0 आएगा, हाँ आएगा। फिर वही सम 1 1 है, आई की वैल्यू 2 है, तो सम 1 की वैल्यू 3 हो गई। टू 28 और अब आई की वैल्यू 3 28, और यहाँ पर सम की वैल्यू 1 थी और आई की वैल्यू 2 है, तो ये हो गए 3, आई 1 2 3। अब नेक्स्ट आई की वैल्यू 4 है, ये 28, में 2 का मॉड करा तो 0 आया, सम इज इक्वल टू सम, मतलब 3 आ गई, वो 1 प्लस 3 आ गई। अब 4, 28 में 4 का 7, सेवन, फिर 5, 28 में 5 का नहीं जाएगा, तो वो वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगी, सम में वो नहीं होगा, सी में भी नहीं जाएगा। 6 में भी नहीं जाएगा। 7
28 7 में जाएगा। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ अपन n मॉड आई की वैल्यू भी लिख देता हूँ, आपको हो सकता है क्लियर नहीं हो। अब वापस पहले 1 28 मॉड 1 28 मॉड 1 की वैल्यू है 0, तो सम इक्वल्स टू सम 0 प्लस 0 है ना, आई की, हाँ नहीं 1 सॉरी 1 आएगी, फिर आई की वैल्यू 2, तो 28 में 2 का मॉड, 28 में 2 का मॉड मतलब 0, और फिर आई 2 है तो 1 प्लस 2 3, फिर 28 में 3 मॉड जाएगा ही नहीं, 4 0, सम 3 प्लस 4 7, 5 जाएगा नहीं, 6 जाएगा नहीं, 7 0 है, 4 इसमें 14 आएगा, n मॉड आई इक्वल्स टू 0, मतलब 28 में 1 का मॉड करेंगे, 1 का मॉड करेंगे 28, हाँ। तो ये अलग अलग करके कैलकुलेट होगा, और ये एक्सप्लेनेशन में 14 7 ये इनके फैक्टर लिख लेंगे और फैक्टर जुड़ता जाएगा उसको, पहले 1 आएगा, फिर n मॉड आई 0, 2 में भी आएगा, तो ये वैल्यू जुड़ती जाएगी और इसका आउटपुट 28 इक्वल्स टू 28। हम यहाँ चेक करेंगे 28 इक्वल्स टू 28, तो नंबर परफेक्ट है। ये ध्यान रखने वाली बात है, परफेक्ट नंबर का लॉजिक है ये। तो ऐसे फॉर लूप के काफी सारे यूजेस हैं, और अगर आपको क्लियर हो गया हो तो ठीक है, मतलब अल्टीमेटली हम उसके फैक्टर्स निकालते हैं, फैक्टर्स हमेशा मॉड्यूलस ऑपरेटर से निकालते हैं। पहले 28 में 1 का मॉड करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 2 का करेंगे तो 1 प्लस 2 3 आ जाएगा, फिर 4 का करेंगे तो 7 आएगा। तो ये सारे कैलकुलेशन करने के बाद आपका 28 ही आएगा, आप कैलकुलेट करोगे